आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल BS नेशन। दोस्तों, अब पालघर के नेत्र रोगियों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। जहां विरार के पश्चिम में न्यू विवा कॉलेज के पास दृष्टि आई हॉस्पिटल का विस्तारित अत्याधुनिक केंद्र शुरू हो चुका है। जी हां, इसका उद्घाटन 2 मई को लोक नेता हितेंद्र ठाकुर के हाथों संपन्न हुआ। इस मौके पर कई गणमान्य व्यक्ति भी यहां पहुंचे। इस मौके पर संस्थापक व संचालक डॉक्टर हेमंत चासिया ने क्या कुछ जानकारी दी अपने हॉस्पिटल के बारे में और अपने बारे में और यहां पर होने वाले इलाज के बारे में। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबान। Hi, my name is Mayuri. So, welcome to inauguration of Drishti Hospital. And Dr. Hemant is here, and he is practicing since 2007. I would like to give information about Dr. Hemant Chasia, Dr. Yash Parmar, and Dr. Srushti Naik. Would like to give you a small background about myself. I have started practice in 1998 elsewhere in Malad, but I started in Virar in 2007, and it was in a very small clinic nearby only, and started with very few equipment and all. And as we gradually grew into practice and we started acquiring more and more equipments, but somewhere at the back of my mind I had this feeling that we are not practicing up to our potential. So we have joined hands with Envision Eye Hospital and ESG Group, and with their cooperation and help, we are starting with this huge center, and we are hoping to cater to all kinds of patients, and we have a wide range of equipment and services available here, right from cataract to retina to oculoplasty, pediatric ophthalmology, and glaucoma, cornea. We'll be serving all kinds of patients and all kinds of diseases will be managed here. And equipment-wise, we have acquired almost everything possible in ophthalmology here. So, and we have probably the first laser in this side of Borivali, I guess, and it's a very high quality laser with very high speed and very accurate results with German technology, and I'm hoping to do a lot of refractive work here also. And we have many visiting surgeons. We have Dr. Yash Parmar for retina, Dr. Srushti Naik is also anterior segment surgeon. We have Dr. Ankita, Dr. Saumil Seth will be visiting for glaucoma and cornea for us. And, Dr. Kamlesh Gupta will be there for oculoplasty as well. Pediatric Dr. Kesarwani will be coming. So probably everything under the sun for ophthalmology will be available at this center. And hoping to do good work for the people of Virar. They don't have to travel far for everything now, as it used to happen earlier. We used to refer a lot of patients to Bombay side, and now with this center we are hoping that we will not have to send anyone out of this center for any kind of treatment. So looking forward to starting this venture. I'd like to give over to Dr. Yash Parmar, retina surgeon. Thank you. So, विरार में शायद इस तरह का हॉस्पिटल अभी तक नहीं है जहाँ पे सब एडवांस स्टेज की चीजें अवेलेबल हैं, तो कितना कुछ बदलाव आएगा और कितना कुछ फायदेमंद रहेगा यहाँ के लोगों के लिए, विरार के लोगों के लिए? जी हमारे पास डायग्नोसिस और एज वेल एज ट्रीटमेंट के लिए सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी सब चीज़ों में है। इवन कैटरैक्ट, रेटिना, जैसे आपको बताया लेजर। कैटरैक्ट में हम लोग फेको एमल्सिफिकेशन एक मेथड होता है जिसमें स्टिचेस नहीं लिया जाता है, तो बिना स्टिच का वो कैटरैक्ट को इमल्सिफाई करके लिक्विड बना के हम निकाल लेते हैं।
और जो लेंसेज हम यूज करते हैं वो सबसे बेस्ट लेंसेज पॉसिबल हम ऑफर कर सकते हैं। मतलब आजकल बाइफोकल ट्राइफोकल बोलते हैं जिसमें दूर का पास का इंटरमीडिएट विजन सब दिखता है बिना चश्मे की सहायता की। तो उस प्रकार की हम लोग सर्विसेज कैटरेक्ट से रिलेटेड बता सकते हैं। रेटिना का जैसे डॉक्टर यश ने बताया, हमारे पास ग्रीन लेजर है, आर्गन लेजर है, डायोड लेजर्स है, तो आरओपी का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो ये सब जो मशीन्स है वो ज़्यादातर आई हॉस्पिटल्स में आपको नहीं दिखती है क्योंकि बहुत कॉस्टली होती है और सबके पास अवेलेबल करना मुश्किल होता है। तो ये सेंटर में वो सब इक्विपमेंट जो रेटिना के लिए है वो भी अवेलेबल है। लेज़र जैसे मैंने आपको बताया लैसिक, तो चश्मा जिसको आजकल टीनेजर से लेके इवन 45-50 तक लोग चाहते हैं कि हम चश्मा नहीं यूज़ करें, तो उनके लिए लैसिक हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया जो इस साइड बोरीवली के इस साइड में किसी के पास नहीं है, हमारा फर्स्ट है। अभी हाई स्पीड लेजर है, टेक्नोलॉजी में सबसे एडवांस्ड है वो। ग्लोकोमा है, कॉर्निया है, बाकी सब चीज़ों में भी इस प्रकार पेरीमेट्री है हमारे पास। स्पेक्युलर माइक्रोस्कोप करके होता है, हम जो कॉर्नियल एंडोथेलियल काउंट करते हैं वो कैटरेक्ट सर्जरी या कॉर्निया की कोई भी सर्जरी होती है उसके पहला स्पेक्युलर माइक्रोस्कोपी बहुत ज़रूरी होता है, तो वो भी मशीन हमने एक्वायर किया है। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजिकली जो भी एडवांस्ड है मशीन ज़रूरत है डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, हम यहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब A to Z आप यहीं पे इसी फैसिलिटी में जी, सब कोई आएगा जिसको आपको प्रॉब्लम है वो जी यहाँ से हम यहीं पे क्योर कर सकते हैं, हम किसी जगह भेजने की किसी को जरूरत नहीं। जी। और कुछ और जी तो उनकी रोशनी वापस आ सकती है कि नहीं, ऐसा कोई ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है आपके यहाँ? मैं डॉक्टर यश से रिक्वेस्ट करूंगा ये जवाब देने। जी सर, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है एंड बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। ऐसा कोई डायबिटीज़ रिलेटेड मरीज नहीं है जिसको मुझे बोलना पड़ेगा कि आप यहाँ नहीं हो सकता, कहीं और दूसरे जगह जाके दूसरी अस्पताल में कीजिए। अगर वो कहीं हो सकता है तो अगर कहीं हो सकता है तो यहीं पे भी हो सकता है। सो वी हैव द बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी टू डील विद इट। और बहुत सी जगह वो दिखाते हैं, मतलब वहाँ के डॉक्टर क्या बोलते हैं आप देख नहीं सकते हो। तो तो एकदम ऐसा क्या कारण है? उसका कोई ये है कि उसका वापस रोशनी आ जाए? सर्जरी, कोई ऐसा है? सर्जरी एक उपाय है उसके लिए। हाँ? सर्जरी करके उसका सर्जरी करके हो सकता है। हो सकता है।